وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی جب اسے سرمد کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ وہ اس وقت سرمد کے فلیٹ میں موجود تھی۔ پہلی بار وہ اس فلیٹ پہ آئی تھی اور یہ بھی سرمد کے بار بار اصرار پر ہوا تھا کہ وہ کلاس چھوڑ کر یہاں موجود تھی۔ سرمد جس انداز میں سائمہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، سائمہ کے ہونٹوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تیز ہوئی اور اس کی پلکوں میں شرم سے پلکیں جھک گئی اور اس کے گال شرم کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے۔ سرمد نے جب اس کا شرمیلا روپ دیکھا تو خوشی سے سرشار ہو گیا۔ سادہ سا دل میں اتر جانے والا روپ جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتا تھا۔ سائمہ اس وقت سادگی میں بھی کمال ڈھا رہی تھی۔ کالے گھرے بالوں کو ڈیلی ڈالی چوٹی میں قید کر رکھا تھا۔ گندمی رنگت اس پر تیز نین نقش اور سب سے قاتل ادا اس کی معصومیت۔ سرمد اس کا دیوانہ تھا، اس کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا تھا، اس بات سے بے خبر کہ ان کی محبت کا کیا انجام ہونا تھا۔ تم سادگی میں بھی کمال ڈھاتی ہو۔ اس نے اپنا سر آگے بڑھا کر سائمہ کے کندھوں پر رکھا تو وہ ذرا سے سائڈ کی طرف ہٹ گئی، مگر اس سے پہلے ہی سرمد اسے کمر سے پکڑ کر اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا کہ مجھ سے دور مت جایا کرو، جب بھی تم مجھ سے دور جانے لگتی ہو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سائمہ کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ سرمد کی آنکھوں میں جھلکتی مدہوشی کے رنگ دیکھ سائمہ کا دل سمٹ گیا تھا۔ سرمد، ہمیں گھر جانا چاہیے، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ابھی آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا تک نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا ارادہ تو تمہیں چھو کر محسوس کرنے کا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور اس کے دہکتے لمس پر سائمہ نے سرمد کی قمیض کے کالر کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ سائمہ کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھی بڑی ہو گئی تھی اور وہ سانس روکے سرمد کی حرکت پر حیران تھی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ سرمد یوں اس کے قریب آ جائے گا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کی سنگت محسوس کر رہی تھی۔ وہ جذبات میں اس قدر بھر گیا تھا، کچھ بھی کر گزرنے کو بے قرار تھا۔ سائمہ نے زور سے ناخن اس کی گردن میں دھنسایا۔ اف، جنگلی بلی! سرمد کھلکھلا کر ہنس پڑا اور اس کی ذرا سی بے باکی نے سائمہ کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، ابھی سے جنگلی بلی بن رہی ہو؟ اسے چھیڑنے لگا۔ سائمہ سرمد کو غصے سے گھور رہی تھی۔ اچھا سوری نا، اب تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں چھوں گا، پرومس۔ اس کی ناراضگی زیادہ دیر سہ نہیں سکتا تھا۔ سائمہ اس کی معذرت پر اگلے ہی لمحے اپنی گہری سانسوں کو سنبھالتے اس کے سینے پر سر رکھ کر ٹیک لگا چکی تھی اور سرمد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی جان تھی، اس کی محبت تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اسے سکون ملا تھا، ورنہ تو سائمہ کے قریب آنے کے لیے ترس جاتا تھا۔ سرمد، اگر حویلی والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو یہ قیامت آ جائے گی اور ہم دونوں کو جان سے مار دیں گے۔ یہ سن کر سرمد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ سائمہ کی کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اگر کسی نے تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، تم میری بیوی ہو، میں تم پر حق رکھتا ہوں، مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے سرمد۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، جیسے وضاحت دی کہ وہ یوں قریب نہیں آ سکتے۔ تو یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والے رخصتی کر دیں، لیکن تمہارا پن ضد پر اڑ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضد توڑنی ہی پڑے گی۔ اسے سرمد کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، تم جانتے ہو نا کہ اس دنیا میں وہی ایک اکلوتا سہارا ہے میرا۔ سائمہ اس کے غصے سے واقف تھی، اس لیے جلدی سے اسے رام کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری وجہ سے میں خاموش ہو جاتا ہوں، ورنہ بہت پہلے ہی میں اس کا بندوبست کر چکا ہوتا۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ پلیز تم غصہ مت کیا کرو، جب تم غصہ کرتی ہو تو مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے معصوم سی آواز میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا۔ میں تم پر تھوڑی غصہ کر رہا ہوں۔ اس نے سائمہ کا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اپنا ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھا۔ لیکن تم میرے سامنے تو غصہ کرتے ہو نا۔ وہ اب کی بار اس کی گستاخی کو نظر انداز کر گئی۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہیں کس حد تک چاہتا ہوں۔ تم میرے دل کے بہت قریب ہو، میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو سائمہ مزید پیگل سی گئی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سرمد،
میرے لیے بھی آپ کے بغیر زندگی گزارنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، وہ بھی بہتے جذبات کی روح میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس کی تھوڑی رب کرتے جسے تسلی مانگ رہا تھا۔ میں اگر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ آپ کا ہاتھ تھامے رکھوں گی، آپ ہمیشہ مجھے اپنے برابر چلتا ہوا پاؤ گے۔ سرمد کی آنکھوں میں دیکھتے وہ سچے جذبے سے وعدہ کر رہی تھی، اور سرمد اس کی خوبصورت آنکھوں میں ایک پل کے لیے ڈوب گیا تھا، اور پھر اگلے ہی پل سرمد نے بے ساختہ اس کی آنکھوں کو چنا اور اس کی کمر پر اپنی گرفت ایک بار پھر مضبوط کر لی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب ہٹی، مگر سرمد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ چالاک لڑکی، تم جان بوجھ کر مجھے باتوں میں الجھا رہی تھی تاکہ میں رومانس کو بول جاؤں، اسے جھوٹے غصے سے گھورتے ہوئے بولا۔ تو وہ گردن پیچھے کر کے ہنسی۔ اسی دوران سرمد نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے اور سائمہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بھی سرمد کی سنگت میں آہستہ آہستہ بہکنے لگی تھی، لیکن کیا کرتی، ڈرتی تھی۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنے رشتے کو شروع نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آج سرمد کے جذبات کچھ زیادہ ہی مچل رہے تھے۔ جب بھی میں تمہاری قریب آتا ہوں نا تو میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اور آج جب تم میرے اتنا قریب ہو، میری باہوں میں ہو، اور اب جب تمہارے ساتھ ایک جائز رشتہ بھی ہے تو کیسے تم سے دور جا سکتا ہو؟ پلیز آج مجھے مت روکو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کتنے عرصے سے خود پر صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ سرمد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ میں آپ پر خود سے بھی زیادہ یقین رکھتی ہوں سرمد۔ تو بس ٹھیک ہے، اب کسی بھی قسم کا سوال مت کرو، بس ان خوبصورت لمحوں کو لطف اندوز کرو۔ اور یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس پر مکمل طور پر حاوی ہو گیا تھا۔ سب کچھ بھول کر آج دونوں نے اپنے رشتے کی شروعات کر لی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا، اور اس وقت اس نے سرمد کی ہی قمیض پہن رکھی تھی۔ کیا ہوا؟ سرمد نے بمشکل ہی آنکھیں کھول کر سائمہ کو دیکھا، جو اس بکھرے خراب نیند میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی، اور سرمد کو اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ سرمد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک بار پھر اپنی جانب کھینچ لیا۔ سائمہ کی گردن پر دیے گئے اپنی محبت کے نشانات پر اس نے اپنے نرم ہونٹ روک دیے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا، اس سے پہلے کہ اس کی انگلیاں دوبارہ اس کے وجود پر حرکت کرتی۔ سائمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سرمد، ہوش میں آؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور تم ہو کہ دوبارہ بہکنے کی تیاری میں ہو۔ اب نہ تو میرے پاس ٹائم ہے۔ سنو، میں نے بھائی سے کہا تھا کہ وہ مجھے 9 بجے لینے کے لیے آ جائے، تب تک میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی۔ 8 تو یہیں پر بج گئے ہیں، مجھے پہلے ہی بہت مشکل سے اجازت ملی تھی۔ بھائی کو پتہ لگا تو وہ میری جان لے لیں گے۔ کیا ہو گیا یار، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، میں تمہیں آدھے گھنٹے کے بعد تمہاری دوست کے گھر چھوڑا جاؤں گا، تم ابھی کے ابھی لے کر چل۔ مجھے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، بھائی ہمیشہ وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، آپ پلیز اٹھیں، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اسے سرمد کا بازو پکڑا اور اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سرمد اٹھ گیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہ کرتا۔ میں بھی آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ میرے والد سے جا کر معافی مانگ لیں۔ تم جانتی ہو کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھ سے دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی فرمائش مت کرنا۔ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات ماننا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہارے والد نے پورے گاؤں کے سامنے میرے والد کو ذلیل کیا تھا، اور میں یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ نہ صرف انہوں نے ہماری زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے کاروبار میں بھی بہت نقصان کیا ہے۔ تمہارے والد کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں ان پر کوئی مقدمہ نہیں کر رہا، اور وہ ابھی تک سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سرمد کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ تمہاری بڑی بہن کی طرح کسی دن وہ تمہارا سودا بھی نہ کرتے۔ کیا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ میں سچ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا، کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگتا ہے
कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। आप बोल रहे हैं हम दोनों का निकाह हो चुका है और जब तक हमारी तलाक नहीं होती तब तक हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। अच्छा, अब जल्दी से कपड़े पहनो, हमें निकलना है। पहले कमीज तो दो, तभी तो पहनूंगी। वो सलमा के वजूद पर से अपनी कमीज देखकर शरारत से मुस्कुराया। अच्छा, मैं अभी फ्रेश होकर आपकी कमीज को वापस कर देती हूँ। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गई। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसकी दोस्त के घर पर उसे ड्रॉप कर चुका था। अभी वो अपने दोस्त के घर के अंदर दाखिल हुई ही थी कि पीछे से उसे चौकीदार की आवाज सुनाई दी। बीवी जी, आपके भाई साहब आपको लेने के लिए आ गए हैं। और उसका दिल तेजी से धड़क उठा। खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त से पहले पहुंच गई, वरना भाई तो मुझे जान से ही मार देते। उसने खुदा का लाख लाख बार शुक्र अदा किया और भाई के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रही हो। उन्होंने अपनी बहन के चेहरे की जानिब देखा तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और अपनी गर्दन के निशानात को छुपाने लगी। तो इतनी नेक कब से हो गई। सिकंदर ने उसका दुपट्टा पकड़ बेसाख्ता उसका मजाक बनाया, क्योंकि वो बहुत कम अपने सर पर दुपट्टा लेती थी। अक्सर ही दुपट्टा उसके गले में होता था। क्या मतलब है आपकी बात का, मैं सर पर दुपट्टा नहीं ले सकती। वो खजल सी हुई। नहीं नहीं, बेशक ले सकती हो, मुझे तो खुशी हो रही है। अल्लाह ताला ने तुम्हें भी हिदायत दे दी, वरना तो मैं कह कह कर थक गया था। मगर मजाल है जो तुम्हारे छोटे से दिमाग में कोई मेरी बात समाई हो। आप हर वक्त मुझे डांटते ही रहते हैं। मुझे तो लगता है कि आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। उसने मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो, और ना मैं आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगा। उसके भाई ने धमकी दी तो फौरन से चीख पड़ी। नहीं नहीं प्लीज, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं नाराज नहीं हूँ। आज हैरानी की बात थी कि उसके भाई का मूड बहुत ज्यादा अच्छा था और खुशगवार था। वो इसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गया। वो दोनों अभी वहां बैठे ही थे कि एक अजनबी शख्स चला आया। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर, कैसे हो तुम। सिकंदर को देखकर उसने सलाम किया और सिकंदर उससे हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। इससे मिलो, यह है मेरी छोटी बहन साइमा। और उसे साइमा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो सुल्तान ने उसे सर से लेकर पैर तक बड़ी ही गहरी निगाहों से देखा। उसके होंठ पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इनसे तो बहुत जल्द एक करीबी मुलाकात होगी हमारी, उसने धीमी लहजे में कहा। उसकी बात को सुन चुकी थी, लेकिन शायद सिकंदर ने नहीं सुनी थी, इसलिए भी किसी भी तरह का कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। चलो बैठो, आओ आइसक्रीम से लुत्फ करो, मैं तुम्हारे लिए भी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता हूँ। सिकंदर ने कहा तो सुल्तान तेजी से इनकार करते हुए कहने लगा, ये बच्चों वाली चीजें मैं नहीं खाता। उसके लहजे में सदा की बेजारी थी। असल में मेरी बहुत ही अहम मीटिंग है, मैं उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। रात की इस वक्त भाई साहब, आपकी कौन सी मीटिंग है यार, करोड़ों की डील है यार, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें मैंने हर हाल में डील फाइनल करनी है। उसने दो टोक अंदाज लिखा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साइमा ने हैरानी से अपने भाई को देखा, क्योंकि उसकी मौजूदगी में कभी भी किसी से नहीं मिलता था। शायद ही उसकी जिंदगी में आने वाला वो पहला ही शख्स था जिससे मुलाकात उसने साइमा के सामने ही की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने साइमा का तारीफ भी उस शख्स से करवाया था। भाई, ये कौन था। वो अपनी हैरत छुपा ना सकी। ये मेरा बहुत अच्छा कारोबारी दोस्त था और भाई के दोस्त का बेटा, और समझो कि ये मेरा भी दोस्त ही है और बाबा का भी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैंने तो उसे कभी भी हमारे घर में नहीं देखा। उसने सुल्तान की पीठ को घूरते हुए कहा, जो इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। हाँ, ये बहुत कम आता जाता है, ये अक्सर तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही आता है। सिकंदर ने लापरवाही से कहा। चलो अब जल्दी से आइसक्रीम खत्म करो, ये पिघल रही है। भाई, आप लोगों ने महरोज अंकल के बारे में क्या सोचा है। आप लोग कब अपनी नाराजगी खत्म करेंगे। अगर मेरी बात मानो तो आप जाकर उनसे माफी मांग लो। काफी दिनों से वो एक डरावना ख्वाब देख रही थी, जिसमें वो देखती थी कि उसका भाई उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं में धक्का दे देता है। पहले तो उसे अपना वहम करार देती रही, मगर जब ये ख्वाब उसे लगातार आने लगा तो वो परेशान हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन लोगों का नाम
मेरे सामने मत लिया करो। सिकंदर के चेहरे के तासुरात पल में बदले थे। मेरे उस अंकल का नाम सुनते ही वो गुस्से के मारे उसके चेहरे की रगें उभर आई थी। भाई, आप लोग भूल रहे हैं, मेरा सरमत के साथ निकाह हुआ है, मैं उसकी बीवी हूँ। ये बात आप लोग जुटला नहीं सकते। आज जब सायमा अपने रिश्ते की शुरुआत कर चुकी थी, तो इस रिश्ते का भी एहसास अपने भाई को दिलाना चाहती थी, जो दुश्मनी की भीड़ चढ़कर उसे पाक रिश्तों का मजाक बना चुके थे। मैं उस निकाह को नहीं मानता सायमा, बेहतर है कि तुम भी इस निकाह को भूल जाओ। और नखुवत से बोला, भाई, निकाह एक मजबूत रिश्ता है और निकाह का ही रिश्ता आपके कहने या ना कहने से नहीं टूटेगा। ये पूरी जिंदगी का साथ है और मैं उसे पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। वो भी आज एहतजाज करने की ठान चुकी थी। देखो साइमा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि हम उन लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। माजी में जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारे बाबा से गलती से हुआ है और हमारे पापा तो आज तक अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हैं। भाई, इस सरमत से मोहब्बत करती हूँ। साइमा की आंखों में आंसू चमकने लगे। बस, बहुत हो गया। मैं आज के बाद तुम्हारे मुंह से सहमत का नाम ना सुनूं। चलो, काफी टाइम गुजर गया है। अभी हमें घर जाना चाहिए। उसकी सारी आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मगर अब उसे आइसक्रीम का भी कोई होश नहीं था। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद के लड़के से होगी। इसके अलावा तुम किसी के साथ रुखसत नहीं करूंगा तुम्हें। उसे तनबीह करते हुए बोला, मेरे साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो चीखते हुए बोले, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जो जी में आया कर सकता हूँ। सिकंदर के लहजे में लापरवाही थी। मैं सरमत से मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ उसी से ही शादी करूंगी। उसने चीखते हुए कहा तो सिकंदर का हाथ उठाओ और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। तो बेयकीनी से आंखें फाड़ कर अपने भाई को देखने लगी। इस वक्त आइसक्रीम पार्लर में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन एक दो लोग थे। उन्होंने हैरत से एक दूसरे को देखा। सड़क पर यूं तमाशा मत बनाओ, घर चलो, घर जाकर इस बारे में बात करते हैं। वो इसका हाथ मजबूती से पकड़कर उसे घसीटता गाड़ी में बिठा चुका था और बड़ी ही तेज रफ्तारी से गाड़ी दुराता हुआ घर लाया था और फिर साइमा का हाथ पकड़कर गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसके दिल का दर्द था कि कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर नौशीन बेगम बहुत ज्यादा घबरा गई थी और भागती हुई उसके पास आई। ये ये क्या हुआ है मेरी बच्ची को? उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया। जबकि उसने कोई जवाब ना दिया तो सिकंदर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। मुझे बताओ, इसे क्या हुआ है? कहीं तुमने तुमने तो इसे कुछ नहीं कहा? ये सड़क पर तमाशा लगा रही थी। आखिर इसने इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मेरे सामने सरमत की साइड ले रही थी? अम्मा, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो जिद्दी बच्चे की तरह चिल्ला रही थी, क्योंकि आज उसका और सरमत का मिलाप हो गया था। इसलिए वो दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते में भी दाखिल हो चुके थे और उन्होंने एक दूसरे को हकूक भी पूरे कर दिए थे। इसी वजह से उसे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उम्मीद से हो जाए, और अगर ये हो जाता तो नई मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वो दुल्हन बन जाए। मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा नजर आ रहा था। तुम मेरे साथ जरा मेरे कमरे में चलो, मैं तुमसे बात करती हूँ। और इसके अंदर बेटा, तुम भी जरा आराम करो, हम इसे समझा लेंगे, बच्ची है, अभी ऐसी हालात की नजाकत का एहसास नहीं है। साइमा ने हैरानी से नौशीन बेगम के चेहरे की जानिब देखा। अम्मा, आपको भाई को समझाना चाहिए और आप मुझे समझाने की बातें कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो और चलो जरा मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए कमरे में ले जाने लगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? अपने साथ साथ मेरी जिंदगी भी क्यों अजाब बनाना चाहती हो? उसे कमरे में लाते हुए बोली। अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? साहिमा हैरान नजरों से माँ की जाने देखने लगी। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, और तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं समाती? नौशीन बेगम ने बेबसी से अपनी जिद्दी बेटी को देखा। उन्होंने पहले से ही अंदाजा लगा लिया था कि साइमा सरमत के साथ अपने रिश्ते को लेकर संजीदा है, उससे मोहब्बत करती है और इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहती है। अम्मा, सच तो ये है कि आप लोगों ने उस इंसान के साथ ज्यादती की है।
آپ نے महरोज انکل کو सब लोगों के सामने जलील किया था, हालांकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी। नौशीन बेगम का हाथ उठा था। उन्हें अपनी बेटी से इस कदर बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी उससे शादी नहीं हो सकती साइमा। बहुत जल्द हम अदालत में से तलाक की दरख्वास्त करेंगे। साइमा के आंसू रवा होने लगे। पहले बाई से थप्पड़ खाया और अब माँ से। अम्मा, मैं उससे तलाक नहीं लूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वो अटल अंदाज में बोली। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, और अब तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। पहले भी तुम्हारी मनमानी देख ली है हमने, लेकिन इस बार नहीं। वो इसे वार्न करने लगी। अम्मा, अगर आप लोगों ने उसके साथ मेरी रुखसती नहीं की तो मैं घर से भाग जाऊंगी या फिर खुदकुशी कर लूंगी। सायमा ने वो धमकी दी जो वाकई कारगर साबित हुई। मेरी तरफ से तुम मर जाओ, यही हम लोगों के लिए अच्छा है। और अगर तुम घर से भाग कर चली भी गई तो ये बात हमेशा याद रखना कि इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो जाएंगे। हमारा तुम्हारे साथ किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। और तुम ये भी बात जानती हो कि जो लड़कियां घर से भागती है उनकी ससुराल में भी कोई इज्जत नहीं होती। अम्मा, उसका मोबाइल अभी उसी वक्त ले ले। सिकंदर को चैन कहा था, वो भी पीछे पीछे कमरे में आ चुका था। सिकंदर की बात सुनकर नौशीन बेगम ने उससे उसका मोबाइल छीन लिया। आज के बाद तुम घर से बाहर कभी नहीं निकलोगी। जब तक तुम्हारी उससे तलाक नहीं हो जाती, तब तक तुम इस हवेली के अंदर ही रहोगी। दोनों माँ बेटा उस पर हावी हो चुके थे। अम्मा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी माँ दरवाजा बंद करके वहां से जा चुकी थी। वो दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर बैठ गई। दिल का दर्द था कि कम होने का नाम ही ले रहा था। आज ही उसका सरमत से मिलाप हुआ था और आज ही इतना बड़ा हंगामा हो गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी अपने भाई से सरमत की बात की। कम से कम वो दोनों एक दूसरे से मिल तो सकते थे ना। लेकिन अब्दू से मिलने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब उसे अपनी बालकनी में कोई आहट सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है तो एकदम से हैरान हो गई और सोचने लगी कि रात की इस पहर वहां पर कौन हो सकता है। हजारों तरह के सवालात थे जो उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे। और इससे पहले कि उसे अपना वहम समझती, उसे सरमत की धीमी सी आवाज सुनाई दी। साइमा, अगर तुम चाह गई हो तो जल्दी से दरवाजा खोल दो, मैं बाहर खड़ा हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जानी पहचानी सी आवाज सुनकर वो जल्दी से बाहर की जानिब आ गई और बालकनी का दरवाजा खोल दिया। सामने ही सरमत खड़ा था और इस वक्त उसने नीले रंग की कमीज के साथ सफेद रंग की जीन्स पहन रखी थी और ऊपर काले रंग की जैकेट। उसका हाथ सर्दी की वजह से जम सा गया था, जबकि उसकी नाक सर्दी की वजह से सुर्ख हो गई थी। सायमा ने जब से उसे देखा था तो एक झटके से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? उसे बालों से सहलाता परेशानी से बोला। सरमत, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो जज्बाती लहजे में बोली। तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम जानती तो हो कि तुम मेरे दिल की धड़कन में बसती हो, जान हो मेरी, और कोई अपनी जान से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। सरमत ने उसकी पेशानी पर अपने होंठ रखते हुए उसे यकीन दिलाया था। सरमत, घर वाले कह रहे हैं कि वो मेरा तुमसे ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहने देंगे। वो कहीं और मेरी शादी कर देंगे। वो अपनी परेशानी उसे बताने लगी। अगर किसी ने ये कोशिश भी की तो मैं उसे जान से मार दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। सरमत एकदम जोश में आया। सरमत, मैं वाकई तुमसे इंतहा मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं तुमसे बिछड़ गई तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो पागलों की तरह उससे निपट गई थी। आराम करो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे पास हूँ और कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। उसने प्यार से अपनी महबूबा के आंसू साफ किए और उसे अपने साथ लगाए हुए बिस्तर तक ले आया था। तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो बड़े ही प्यार से उसकी आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला। और वो उसकी बाहों में लगकर उसके साथ बैठी थी।
सरमद ने उसे और भी करीब करते आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां चलाई। उस लफ्ज में साहिबा सब कुछ भूल गई थी और सुकून से उसकी बाहों में सिमटी चली गई। उसे खुद को उसके हवाले कर दिया। इस वक्त वो दोनों ये बात भूल चुके थे कि इस वक्त वो साइमा के घर पे मौजूद है। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई और इससे दूर हटा। कौन आ गया इस वक्त? मुझे नहीं पता। वो घबरा गई। डरने की जरूरत नहीं है, जाकर पूछो कि कौन है। साइमा कांपते हुए दरवाजे के पास गई। कौन है? उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। सरमद ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा, क्योंकि ये उसकी मासूम सी महबूबा कुछ भी नहीं छुपा सकती थी। सब उसके चेहरे और उसके अंदाज से जाहिर हो जाता था। साइमा बेटा, मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत ही अहम और जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ नौशीन बेगम की आवाज सुनाई दी। अम्मा, मैं आपसे इस वक्त कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई थी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। अम्मा प्लीज, आप यहाँ से चली जाए। मैं सुबह आपसे बात करूंगी। फिलहाल मैं किसी से भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। अब की बार उसका लहजा हमवार हो चुका था। जब उसकी माँ चली गई तो गहरे सांस छोड़ती हुई बोली, शुक्र है अम्मा थी, भाई नहीं थे। अगर भाई होते तो हर हाल में दरवाजा खुलवा कर ही दम लेते, और अगर दरवाजा खुल जाता तो मैं आपको वॉशरूम में छुपा देती। और वो इसकी कमीज से कॉलर से खेलते हुए बोली, ये मैं बात यकीन से कह सकता कि तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे भाई को शक हो जाना था, और फिर तुम जितनी बार भी दरवाजे को घूरती वो खुद ही आकर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर मुझे पकड़ लेते। उसने आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था, आप मुझे जितने बेवकूफ समझते हैं उतनी बेवकूफ हो गई है। वो मासूमियत से बोली, मैं जानता हूँ कि मैं आपको जितना बेवकूफ समझता हूँ, आप तो कहीं से भी ज्यादा बेवकूफ है। सरमत, आप मुझे तंग कर रहे हैं। अरे मेरी इतनी औकात कि मैं आपको तंग करूं? उसने अपने सीने पर हाथ रख कर जरा सी गर्दन झुकाते हुए कहा, अब जो इतनी जान के इतनी करीब आ गया तो जज्बात परेशान कर रहे हैं, उन्हें खामोश किए बगैर नहीं जाऊंगा। चलो, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उसे बिस्तर की जानिब इशारा करते हुए बोला तो वो बुरी तरह घबरा गई। तो क्या मतलब आपका? वो कांपते हुए लहजे में बोली, तुम्हारी उम्र क्या है? सरमत ने उल्टा उससे सवाल किया था। अभी अभी तो मैं 21 साल की हूँ। फिर तो तुम्हें अच्छे तरीके से हर चीज के बारे में पता होगा, और वैसे भी कल सब कुछ तुम्हें अमली तौर पर दिखाया था, और उसके बाद भी अगर तुम अनजान बनो तो ये गलत बात है। उबाय आंख मारते हुए बोला तो घबरा गई। आपने बोला था कि आप दोबारा उस वक्त नहीं करेंगे। वो पीछे हटी। मेरी जान, आपके साथ ही करूंगा, और ना किसके साथ करूंगा? सरमत, अगर घर वालों को पता चल गया तो वो अपनी परेशानी जाहिर करने लगी। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगर तुम्हारे घर वालों से माफी भी मांगनी पड़े तो मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? उसने बेसाख्ता सरमत से पूछा, क्योंकि कल तक तो उसके घर वालों से माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और आज वो खुद कह रहा था कि उसके भाई से सुलह कर लेगा। मैं क्या कभी झूठ बोल सकता हूँ क्या? उसके बालों को छूते हुए बोला, नहीं, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे आप पर पूरा पूरा यकीन है। वो अपना ये यकीन हमेशा बरकरार रखा। कहते हुए सरमद ने उसका दुपट्टा गले से हटाकर एक तरफ रख दिया था और उसकी फिरोज की जिप नीचे करने लगा। सरमद प्लीज, सामा ने नखरे दिखाने चाहे। अब हर किस भी तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अब तो बिल्ली के मुंह खून लग चुका है। कल रात से वो हसीन पल मुझे बुरी तरह बेचैन कर रहा है, और मैं फिर से उन लम्हों को जीना चाहता हूँ। ये कहकर संबत ने उसकी फिरोज को नीचे सरका दिया और खूबसूरती में एक बार फिर मदहोश होने लगा। साइमा ने इनकार करना छोड़ दिया था और उसने अपना आप एक बार फिर सरमत के हवाले कर दिया। पूरी रात उसके वजूद में मगन रहा। सुबह जब वो सोकर उठी तो एकदम बौखला गई। सरमत उसके पहलू में बेखबर सो रहा था। उसे झिंझोर कर उसे जगाया तो एकदम हड़बड़ा कर उठा। अरे यार, इतनी अच्छी नींद बीबी कौन जगाती है शोर को? आप यहाँ कैसे आए? उसके ये सवाल सुनकर सरमत थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखने लगा।
बड़ी जल्दी तुम्हें याद आ गया, हालांकि पूरी रात मेरी बाहों में मगन रही हो तुम, और पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे आ गया। और अगली पल साइमा के दिमाग में रात के गुजरे पल घूम गए और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो भूल गई थी कि कल पाइप से चढ़कर वो ऊपर आया था। अब आप जाएंगे कैसे? इस बारे में मुझे नहीं पता, तुम ही मुझे अब यहाँ से निकालोगी। वो लापरवाही से उठकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ चुका था। मैं आपको कैसे निकाल सकती हूँ? अगर किसी ने देख लिया तो फसाद खड़ा हो जाएगा। डर के मारे साइमा की चेहरे की रंगत सफेद पड़ चुकी थी। मैं नहीं जानता, यहाँ पर आना मेरा काम था और मुझे यहाँ से बेचना अब तुम्हारा काम है। वो भी छोटे बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ था। आप भी ना हमेशा ही गड़बड़ कर देते हैं। वो एकदम रूहान सी हो गई थी। तो मेरी जान, फिर आज सब कुछ ठीक कर दिया करे ना। उसकी गालों को प्यार से खींचते हुए बोला। आप दूर हटे, मैं सोचती हूँ कुछ। वो डरते डरते कमरे से बाहर निकल गई थी। सामने ही सरैया मासी काम करती दिखाई दी। सरैया मासी, अम्मा पापा और सिकंदर भाई कहाँ है? उसने खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा और सरैया मासी की बात सुनकर उसने एक सुकून का सांस लिया था। खुदा का शुक्र था कि उस दिन उसके घर वाले एक खानदानी लंच पर गए हुए थे। घर पर कोई भी नहीं था। उसकी एक खास नौकरानी थी जिसकी मदद से उसने सरमद को हवेली के पिछले हिस्से से बाहर निकाला था। वो जैसे ही लॉन में आकर बैठी, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहां सुल्तान खड़ा था, जो कि उसकी तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था। आप आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो हैरान रह गई। लगता है आप भाई से मिलने के लिए आए हैं। तो वो घर पर नहीं है, ये कहकर उसने अपने कदम अपने कमरे की जाने बढ़ाए थे। उसे अजनबी मर्दों से मिलना वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था, और फिर दूसरा, उसके भाई को भी ये बात पसंद नहीं थी कि किसी गैर मर्द से इतनी आजादी से मिले, और इसीलिए उसने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा था। लेकिन सुल्तान एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। जी नहीं, मैं आपके भाई से नहीं, बल्कि आपसे मिलने के लिए आया। सुल्तान की बात सुनकर वो बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। मुझसे मिलने के लिए? उसने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी, आपसे मिलने के लिए आया हूँ। असल में मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी मजबूत रिश्ते में दाखिल होने से पहले हम एक दूसरे के बारे में मुकम्मल तौर पर जान लें। नॉर्मल में लहजे में वो बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातें किसी खंजर की तरह साइमा को अपने दिल में लगती हुई महसूस हो रही थी। मैं आपकी बात समझी नहीं। आप किस रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या आपको सिकंदर ने अभी तक कुछ नहीं बताया? वो हैरान हुआ था। नहीं, भाई ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। उसने ला इल्मी से कहा। दरअसल मैंने आपकी माँ से आपका रिश्ता मांगा था और आपके घर वालों ने मुझे आपका रिश्ता दे भी दिया है। वैसे ये तो बहुत ही अजीब बात है कि उन्होंने अभी तक मेरी अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया। वो नॉर्मल लहजे में बोल रहा था, मगर साइमा को लगा था कि सातों आसमान उसके सर पर आकर गिर गए हैं। वो पहले ही किसी के निकाह में मौजूद थी, फिर वो कैसे किसी और से रिश्ता कायम कर सकती थी? इससे पहले कि उसे पुकारता, वो तेजी से वहां से भागती चली गई। सुल्तान ने गहरी सांस छोड़ी। पता नहीं ये लड़की इतना घबराती क्यों है। वो हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे साइमा के पहले निकाह के बारे में भी नहीं मालूम था। अगर उसे पता भी होता, तब भी वो इस लड़की से हर हाल में शादी करता, क्योंकि जब उसने पहली बार साइमा को देखा था तो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया था। उसे आज से पहले कोई भी लड़की अपने दिल के इतनी करीब नहीं लग रही थी जितना करीब उसे साइमा महसूस हो रही थी। वो अक्सर अब उसे याद भी करता था और सोचता था कि कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है, कोई इस कदर पुरकशिश कैसे हो सकता है कि एक ही झलक में किसी को अपना कैदी बना ले। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। उसे अपनी एक नौकरानी से मोबाइल लिया और सरमद का नंबर डायल करने लगी। हेलो सरमद, मेरी बात सुनो। अरे तुम कितने नंबर बदलोगी यार? उसने मोबाइल पर नए नंबर को देखते हुए हैरानी से कहा था, क्योंकि कोई अजनबी नंबर था। ये मेरा मोबाइल नहीं है सरमद, मैंने नौकरानी से मोबाइल लिया है। कल तो तुम मेरे करीब आते ही मुझ में इतना मसरूफ हो गए थे कि फिर मुझे भी तुम्हें बताने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। दरअसल मेरा रिश्ता तय हो गया है। मामा बाबा ने मेरा रिश्ता
किसी और के साथ तय कर दिया है। उसने सरमत के सर पर बम फोड़ा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कह रही हो? सरमत को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा ही हुआ है। और तुम ये शादी करने के लिए राजी हो? सरमत ने हैरानी से पूछा था। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं ये निकाह कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। तुम प्लीज कुछ ऐसा करो कि ये नया रिश्ता खत्म हो जाए। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, किसी ने उसके हाथ से मोबाइल चिपक लिया। उसने पलट कर देखा तो वहां सिकंदर खड़ा था, और जैसे उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। भाई, उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। सिकंदर के चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून फैला था, लेकिन वो जानती थी कि ये सुकून किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। भाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि वो कुछ कहती, सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो? सिकंदर ने सवाल किया। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ भाई, और उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या तुम कभी चाहोगी कि तुम्हारी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचे? सिकंदर ने उसे एक अजीब से अंदाज में देखते हुए कहा, और वो पूरी तरह काम किए। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब बिल्कुल साफ है। क्या तुम चाहती हो कि उसकी जान चली जाए और वजह तुम बनो? वो सफाकियत से बोला। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करे। अरे, मैं तो सिर्फ बातें कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं उसे जान से मार दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इस बार सिकंदर इतनी जोर से दहाड़ा था कि साइमन ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। अगर तुम्हें अपनी सरमत की जिंदगी प्यारी है तो इसे अभी इसी वक्त तलाक मांगो, और उससे कहो कि तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। तुम अपने माँ बाप की मर्जी से निकाह करोगी। भाई, प्लीज मेरे साथ ये जुर्म मत करे। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं अभी अपने आदमियों को उसके पास भेजता हूँ, तो इस इंसान का काम तमाम कर दे। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो जानती थी कि उसका भाई बहुत बड़ा गुंडा है और पहले भी कई लोगों को ऊपर पहुंचा चुका है। वो सरमत के मामले में किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती थी। सिकंदर ने उसका मोबाइल उसके हवाले कर दिया। आज के बाद तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारे पास है। अब मैं देखता हूँ कि तुम उसका कैसे इस्तेमाल करती हो। क्या तुम अपने आशिक को बचाती हो या फिर अपनी मोहब्बत की पतंगे बढ़ाती हो और अपने आशिक को मौत के घाट उतारती हो। भाई, आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। उसने सिसक कर कहा, मगर सिकंदर उसके हाथ से मोबाइल उसको थमा चुका था। वो अजीब दोराहे पर आन खड़ी हुई थी। उसके पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। सरमत को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी, यही बेहतर है। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। रात गहरी खामोशी और सुकूत में ढल गई थी। मोबाइल उसके हाथ में था, मगर वो चाहकर भी सरमत को कॉल नहीं कर पा रही थी। उसे कैसे बताती कि वो किस मुश्किल में फंस चुकी है। आंसुओं से उसका तकिया भीग चुका था, मगर घर वालों को जैसे उसकी रोने चिल्लाने की कोई परवाह नहीं थी। उसकी माँ भी उसके हक में नहीं थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। उसने मोबाइल एक साइड पर रख दिया और रोने का सिलसिला जारी रखा। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो घर में थी, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। बस फोन रखने की हद तक आजादी दी गई थी, मगर उसने फोन को छुआ तक नहीं था। नौशीन बेगम उसकी हालत देखकर परेशान रहती थी। उसे समझाने की कोशिश करती, मगर वो कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। बस वो खामोश थी, न उनकी बात में हाँ मिला रही थी और ना ही इनकार कर रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के आ गए थे। सिकंदर की वो लाडली बहन थी, मगर इस मामले में वो खामोश था। यूं एक माह गुजर गया, जब एक दिन अचानक उसका सर चकराने लगा। यूं लगा जैसे आसमान घूमने लगा हो, और वो बेहोश हो गई। नौशीन बेगम बहुत परेशान हो गई और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगी। एक लेडी डॉक्टर के क्लिनिक लेकर आ गई, और जो इंकशाफ उसने किया वो दोनों माँ बेटी के लिए आसमान सर पर गिराने जैसा था। नौशीन बेगम साइमा को बेयकीनी से देख रही थी। तुमने ये क्या कर दिया साइमा? अगर तुम्हारे भाई या बाबा को पता चल गया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उनकी आंखों में आंसू थे और साइमा के आंसू जैसे आंखों में ही जम गए। मामा, मैं उसकी बीवी हूँ,
وہ میرا شوہر ہے. اگر آپ لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے تو آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں کہ میں کیا کروں گی؟ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور اب تو میں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں. خدا کے لیے میری حالت کو سمجھے. آپ تو میری ماں ہے نا، ایک عورت ہے. اگر آپ مجھے نہیں سمجھیں گی تو اور کون سمجھے گا؟ اگر آپ ہی مجھے سپورٹ نہیں کریں گی تو میں کس سے امید لگاؤں گی؟ سائمہ کی جذباتی باتوں نے نوشین کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. بیٹا، تمہارے بابا اور بھائی اس کی جان لینے کو تلے ہوئے ہیں. اگر میں نے تمہاری سائڈ لے بھی لی تو کیا فائدہ؟ میں بھی تو ایک کمزور عورت ہوں. ہماری کون سنے گا؟ وہ بے بسی سے اسے بولی. سائمہ نے ان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لے. ماما، سرمت بہت اچھا لڑکا ہے. وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا. بس آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دے دے اور مجھے سرمت کے ساتھ رخصت کر دے. جب بابا اور بھائی کا کوئی سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی، مجھے معافی مانگ لوں گی. نوشین بیگم اس کی بات سن کر دھنگ رہ گئی تھی. تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھگا دوں؟ ان کا شک بالکل صحیح تھا. اچانک دروازہ کھلا اور سرمت اندر داخل ہوا. سائمہ نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ وہ کلینک میں ہے اور وہ بھاگا ہوا آیا تھا. میری جان، میں آ گیا. تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ اب تمہارے پیٹ میں ہماری محبت کی نشانی بھی ہے. میں کسی صورت اسے نقصان نہیں پہنچانے دوں گا. سرمت کے لہجے میں یہ یقین دہانی تھی. روشنی میں بیگم نوشین آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. مجھ سے وعدہ کرو کہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھو گے. میں تبھی تمہارے ساتھ اسے رخصت کروں گی. اور یہ مت سمجھنا کہ تم اسے بگا کر لے گئے ہو، بلکہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں اسے تمہارے سنگ ابھی اور اسی وقت رخصت کرتی ہوں. نوشین بیگم کی باتیں سن کر سائمہ اور سرمت خوشی سے نہال ہو گئے تھے. آپ کا بہت شکریہ آنٹی. میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں ایک بہت اچھا باپ اور ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوں گا. یہ وقت آپ کو بتائے گا. مگر ماما، بھائی تو سرمت کو قتل کر دیں گے. سائمہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی. اب تو میں ماں بننے والی ہوں. اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جھلکنے لگے. تم اس کی فکر مت کرو. میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو تمہارے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا. جتنی زندگی میری لکھی ہے نا، تو اتنی گزار کر ہی جاؤں گا. اور اب تو میں تمہارے ساتھ ہزاروں سال جینا چاہتا ہوں. اور تم مرنے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہلکی پھلکی انداز میں بولا. نوشین بیگم نے اسے کلینک سے ہی سائمہ اور سرمت کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا اور خود گھر آ گئی. وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کر کے آئی ہیں وہ ایک نارمل خلافی جرم ہے، مگر اپنی بیٹی کے لیے اتنی قربانی دینی تو بنتی تھی. ان کے سارے راستے، ان کی حفاظت کی دعائیں وہ کرتی گھر آئی. گھر آتے ساتھ ہی سکندر نے انہیں گھیر لیا. ماں، آپ کہاں چلی گئی تھی؟ اور سائمہ کہاں ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا اسے باہر لے کر نہیں جانا. وہ تشویش سے بولا تو نشین بیگم نڈال سے سونے بیٹھ گئی. دیکھو، اس کے اندر جس طرح تم میرے بیٹے ہو نا، مجھے تمہاری خوشی کا احساس ہے. اس طرح سائمہ بھی میری بیٹی ہے. مجھے اس کی خوشی کا بھی احساس کرنا پڑا. ویسے بھی سائمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. میں آخر کچھ بھی کیوں نہ کرتی، وہ محبت کرتی تھی سرمت سے. سرمت اس کا شوہر تھا. غلطی تو تمہارے پاپا کی ہے، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے سائمہ اور سرمت کا نکاح کر دیا اور پھر انہی سے دشمنی مول لے لی. میں اپنی بیٹی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی. اس کا گھر کیسی اجاڑتی میں، اور اب تو بہت دیر ہو چکی ہے. نوشین بیگم کی باتیں سکندر کا غصہ ساتویں آسمان تک لے گئی تھی. ماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کر دیا ہے؟ اب اتنی بے وقوفی کی آپ سے مجھے امید نہیں تھی. مجھے آپ سے تو کم از کم نہیں تھی. میں تو سائمہ کی شادی اپنے دوست سے کرنا چاہتا تھا. وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اسے بہت خوش رکھتا. سائمہ تو بچی ہے، آج نہیں تو کل سنبھل ہی جاتی. اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اور میں اس سرمت کے بچے کو پتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اس کی جرت کیسے ہوئی میری بہن کو بگا کر لے گیا، ہماری عزت کو تاڑ تاڑ کر گیا. اس قدر غصے میں تھا کہ نوشین بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اگر اس سکندر کو بتا دیتی کہ سائمہ امید سے ہے تو ان دونوں کو ہی جان سے مارتا تھا، غیرت کے نام پر. اس لیے انہوں نے سب اللہ پر چھوڑا اور دعائیں کرنے لگی. سرمت سائمہ کو لے کر گھر آ چکا تھا اور استقبال اس کا ویسا تو نہیں ہوا جیسا دلہنوں کا ہوتا ہے.
मगर उसके लिए यही गनीमत थी कि घर वालों ने इसे कबूल कर लिया था। सरमस का बस नहीं चल रहा था कि उसे इस सर पर उठा ले। वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर साइमा गहरी तशवीश में थी। वो अपने भाई को अच्छी तरीके से जानती थी। सरमत, देखो, तुम घर से नहीं निकलोगे, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ अरसे के लिए हम मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा ना, तो मैं उसे खुद अपने घर ले जाऊंगी और अपने बाप और भाई के सामने भीख मांगूंगी कि वह हमें बख्श दे। उसने अपनी तरफ से एक अच्छा हल पेश किया, मगर सरमत को नागवार गुजरा। तुम क्यों भीख मांगोगी? क्या मैं अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तुम मुझे समझती हो। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है। उसे ऐसी बातें मत करो। उन लम्हों को महसूस करो जो हमारा मुकद्दर बन गए हैं। उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी, मगर घर वालों ने भी मशवरा दिया कि कुछ अरसे के लिए उनकी खुफिया फार्म हाउस चले जाए और वहां पर रहे। और सरमद उसे लेकर वहां आ गया और वो दोनों फिर से एक दूसरे की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूबने लगे। ये वक्त साइमा की जिंदगी का सबसे खुशगवार और खूबसूरत था, मगर वो नहीं जानती थी कि कोई उनकी घाट में बैठा हुआ है। लो माँ की तवज्जो और मोहब्बत रंग लाई और साइमा की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा बेटा आया, जो इनकी मोहब्बत की निशानी था। सरमत के पांव तो जैसे जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। बाप बनने की खुशी हर चीज पर हावी थी। साइमा को अपने घर की बहुत याद सताने लगी। काश वो वहां जाती और अपने बाप भाई से माफी मांगती। उसे यकीन था कि अब तो उसे माफ कर ही देंगे, मगर ये उसकी खामख्याली थी। एक रात सरमत फार्म हाउस से निकलकर शहर की जानिब साइमा को लेकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में उन पर फायरिंग होने लगी। साइमा बौखला गई। उसकी गोद में छोटा अब्दुल बासित सो रहा था। वो भी जाग गया। सरमत ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो नहते थे। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर एक गोली गाड़ी का शीशा अबूर कर दी सरमत के कंधे पर लगी। इतना खून देखकर साइमा के होश उड़े। वो हैलत के बल चिल्लाने लगी। गाड़ी अपना तवाजुन खो चुकी थी और उस सड़क पर एक जानब लुढ़क गई। उनकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग चुकी थी। जब अचानक उसकी आंख खुली तो अस्पताल के बिस्तर पर थी। एकदम से चिल्लाई। उसका शौहर और बेटा अचानक किस हाल में थे, जिंदा थे भी या नहीं? वो पागलों की तरह अस्पताल के कॉरिडोर में भागती जा रही थी कि अचानक किसी से टकराई, और कोई और नहीं बल्कि इसका भाई सिकंदर शाह। शायद वो तसल्ली करने आया था कि वो मर गया है या जिंदा। साइमा ने उसे गिरेबान से पकड़ लिया। तुम भाई नहीं, दरिंदे हो। अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे मेरा शौहर नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे से उसका बाप छीनने की कोशिश की। अपने इंतकाम में इस कदर अंधे हो गए कि इंसानियत भूल गए। आओ, मैं दिखाऊं उस मासूम बच्चे की शक्ल। अगर वो जिंदा है तो। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी और सिकंदर साकित रह गया। उसकी बहन ये क्या कह रही थी? क्या उनका बच्चा भी था? वो वाकई भूल गया था जब वो एक फैमिली बन चुके थे। साइमा पागलों की तरह अपने शौहर और बच्चे को तलाश कर रही थी। पर आखिर उसे रूम मिल गया था। उसका बच्चा ठीक था। उसे कुछ खराशें आई थी, मगर सरमत अभी तक बेहोश था। डॉक्टर ने कहा था कि अभी उसकी हालत खतरे में है। सरमत की जान पर बनी हुई थी। सिकंदर अलग शर्मसार था। वो इतने अरसे से सरमत की तलाश में था। उसके सर पर बस इंतकाम सवार था। कल रात उसे इत्तला मिली कि वो शहर जा रहा है। उसने अपने आदमी से कहकर उस पर हमला कराया, मगर नहीं जानता था कि उनका एक नन्हा बच्चा भी है। अब उसकी पछतावे की कोई हद नहीं थी। बशीर बेगम भी उसे कोस रही थी कि अगर सरमत को कुछ हो जाता तो उसे कभी माफ न कर देगी। वह आखिर 24 घंटे बाद सरमत को होश आ गया था। उसकी हालत खतरे से बाहर थी। साइमा ने सुख का सांस लिया। वो भी अपनी बीवी और बच्चे को देखकर मुतमईन था। अचानक सिकंदर कमरे में आया। साइमा उसके सामने खड़ी हो गई। आपको सरमत को कुछ भी कहने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। वो सीना तान कर खड़ी थी और सिकंदर एकदम उसके कदमों में गिरकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं तो अपने भतीजे से मिलने आया हूँ। उसे गोद में उठाना चाहता हूँ। तुमसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सब लोग उसके यूं बदल जाने पर जहाँ हैरान थे, वहाँ खुश भी थे कि आखिरकार वो भी खतरा टल गया जो इतने अरसे से साइमा को महसूस होना था। सिकंदर ने नन्हे बासित को गोद में उठाया और प्यार किया।
تو سرمد کی دل کی قدوت بھی زائل ہو گئی۔ آج اس کی محبت کی فتح ہوئی تھی۔